स्क्रीन दिखलाई दे रहा है ना? Ready? Yeah, in this session we are going to discuss about solar radiation, and we will deal with how solar radiation interacts with our atmosphere. Okay, we will also deal what is conduction, convection, and advection. First of all, understand what is the difference between air and wind. Okay, so you guys, whatever you inhale and exhale, you feel that is air. So there is some technical difference. It simply means air in motion is wind. Okay, whatever the air is, when it comes in motion, it is known as wind. Okay. हेलो, स्क्रीन दिखलाई दे रहा है? नो सर। ओके, अभी दिखलाई दे रहा? यस सर। रेडी? अरुण सर है? ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। अरुण सर, Okay. Yes, sir. क्लियर In है? this session, in this session we are going to discuss about solar radiation, and we will understand how solar radiation interacts with our atmosphere. Now, starting with what is the difference between air and wind. Okay, wind is basically when air comes in motion, it is known as wind. And you have already learned about the fact that earth is surrounded by the air all around, and the thing is, this envelope of air is atmosphere, which is composed of numerous gases. We have already studied in earlier class. In earlier session, we have studied that what are the composition of gases in our atmosphere. So the thing is all about that class. Okay, these gas support life over the Earth's surface. Due to presence of oxygen, we are able to stay here on the Earth. So basically, the gases supports life over the Earth's surface, and the Earth receives almost all of its energy from the sun. And without the energy of sun, life is not possible on the Earth. The Earth is in turn radiates back to the space the energy received from the sun. As a result, the Earth neither warms up nor does it cool over a period of time. Thus, the amount of heat received by different part of the Earth is not same. Why it is not same? It is just because the variation causes pressure difference in the atmosphere. This leads to transfer of heat from one region to the other by the wind. It simply means whatever the radiation and whatever the heat received by the atmosphere, it is transferred from one place to another place by the wind. Okay, it simply means it is transferred by the wind. Okay, and all the places on the earth would not receive the same insolation, same sunlight, just because of लैंड सरफेस आर अनइवन, है ना, ये समान नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कोई न्यूनतम अक्षांश जो है ना, लोअर लैटिट्यूड है, हायर लैटिट्यूड है. वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. द अर्थ surface receive most of its energy in short wavelength. This is your question of examination, है ना. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछा जाता है. The energy received by the earth is known as incoming solar radiation, which is in term as insolation, है ना.
सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो शॉर्ट वेव्स होता है या लॉन्ग वेव्स होता है ना, किस टाइप्स का वेव है, तो योर आंसर वुड बी शॉर्ट वेव्स. नाउ एज द अर्थ इज नाउ during this revolution around the sun, the earth is farthest from the sun. On 4th of July, this position of earth is called aphelion, and on 3rd of January, the earth is nearest to the sun, and this position is known as perihelion. Therefore, the annual insolation received by the earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th जनवरी, है ना. ऑब्वियस सा है कि जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी बढ़ जाएगी तो उस समय सनलाइट क्या होगा, कम रिसीव होगा, और दूरी जब घट जाएगी तो सनलाइट अधिक रिसीव होगा, है ना. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फारदेस्ट कब होता है, 4th ऑफ जुलाई को, और नियरेस्ट कब होता है, सन अर्थ के नियरेस्ट कब होता है, 3rd ऑफ जनवरी को. सो दीज आर द थिंग्स. However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of land and the sea and the atmospheric circulation. Hence, this variation in the solar output does not have the great effect on daily weather change on the surface of the earth. So these are the things all about solar radiation. And now we are going to discuss about variability of insolation. Insolation simply means sun's energy. Insolation at the surface of the earth. The amount and the intensity of the insolation vary during a day, in a season, and in a season and in a year. कहने का मतलब ये है कि दिन के समय सूर्य प्रकाश अधिक प्राप्त होता है, किसी मौसम विशेष में सूर्य प्रकाश अधिक प्राप्त होता है ना, और किसी साल में सूर्य प्रकाश अधिक या कम प्राप्त होता है. तो ये कहा जा रहा है द फैक्टर्स दैट काउज दिस वेरिएशन इन इंसोलेशन आर. और ये जो इंसोलेशन में वेरिएशन होता है ये आखिर होता क्यों है, तो देयर आर 5 रीजंस, है ना. तो फर्स्ट रीजन इज द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ का अपने अक्ष पर घूमना, है ना, ये पहला रीजन है. एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रे. एंड द थर्ड वन इज द लेंथ ऑफ द डे. एंड द फोर्थ वन the transparency of the atmosphere. And the fifth one is the configuration of the land. इसी के वजह से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सभी जगह समान रूप से प्राप्त नहीं होता है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम प्राप्त होता है. Now the fact that Earth's axis makes an angle of 66.5 with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at a different लैटिट्यूड. ठीक है, ये जो अर्थ है ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर और प्लेन है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है ना. जब ये फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ इस फिगर में नोटिस करिए, है ना, कितने डिग्री का एंगल बन पा रहा है. ठीक है. नाउ द सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड is the angle of inclination of the rays. This depend on the latitude of a place. The higher the latitude, the less is the angle, है ना. यहाँ पर आप नोटिस करिए फिगर पर आप नोटिस कर रहे हैं लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एंगल वैसे वैसे कम होता जा रहा है ना. 90 डिग्री पर देखो कितने डिग्री का, जो आप पोल पर देखेंगे नॉर्थ और साउथ पोल जो जहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है ना, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हायर लैटिट्यूड है, तो वहां पर देखिए कम एंगल बन रहा है ना, और ये 0 डिग्री है, यहाँ पर सबसे अधिक एंगल बन रहा है, और उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बन रहा है. तो इसीलिए कहा गया द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल द मैक विद द सरफेस द अर्थ रिजल्टिंग इन द स्लैंट रेज. द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज, है ना. If more area is covered, the energy gets distributed and the net energy received per unit area decrease. ठीक है. So this is about the solar radiation, है ना, जो कि प्राप्त होता है पृथ्वी को.
Now we are going to deal the passage of solar radiation. Now we are going to deal the passage of solar radiation through the atmosphere. Okay, heating and cooling of atmosphere, अभी थोड़ा time है इसमें. So we will deal the passage of solar radiation through the atmosphere. The atmosphere is largely transparent to the short wave radiation. मैंने आपको अभी बताया कि सूर्य सनलाइट जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है. ठीक है, तो the atmosphere is largely transparent to the short wave radiation, solar radiation. The incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the Earth's surface. Within the troposphere, water vapor, ozone, and the other gases absorb much of the infrared radiation. जब ये सोलर रेडिएशन अर्थ पर आता है तो इसको एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, ओजोन से गुजरना पड़ता है, तो ये फिल्टर होता चला जाता है. इंफ्रारेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर एंड मोस्ट ऑफ द सनलाइट absorbed by our atmosphere. Very small suspended particle in the troposphere scattered visible spectrum both to the space and toward the earth surface. कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, इसको स्कैटर कर देता है ना. सस्पेंड, इट्स बेसिकली the process adds color to the sky. It simply means the suspended particles in the troposphere scatter visible spectrum. आप जब फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें विबग्योर पढ़ा होगा आपने, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, है ना. तो उसी कलर्स की बात हो रही है. एक वाइट लाइट में, स्पेक्ट्रम में एक वाइट लाइट जब आप प्रिज्म से एक वाइट लाइट को पास करेंगे तो आप पाएंगे कि वो 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है. उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ, है ना. नाउ द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ द सन एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई आर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट विद इन द एटमोस्फेयर. यहाँ भी देखो एक क्वेश्चन हो गया, आपसे ये पूछा जाएगा कि सुबह और शाम आकाश का रंग ऐसा लाल क्यों हो जाता है ना, लालिमा क्यों छाई रहती है सुबह और शाम को, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. आकाश नीला क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना. अगर हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं होता, हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आकाश आपको काला दिखता. समझ रहे हैं बात. और आकाश नीला इसलिए दिख पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. Now we are going to deal heating and cooling of atmosphere. Now we are going to deal heating and cooling of atmosphere. ठीक है, heating and cooling of atmosphere. Now heating and cooling of atmosphere. There are different ways of heating and cooling of atmosphere. The earth, after being heated by insolation मतलब sunlight, transmit the heat of the atmospheric layer near to the earth in long wave forms. कहने का मतलब ये है कि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ है ना, और अर्थ के द्वारा और गैसेस के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया गया. ठीक है, अर्थ ने जो भी हीट एब्जॉर्ब किया उसको ट्रांसमिट किया जाता है कैसे, लॉन्ग वेव के फॉर्म में, है ना. ये चीज याद रखिएगा. शॉर्ट वेव को फॉर्म में सनलाइट आता है और अर्थ इसी हीट को जब रेडिएट करेगा तो कैसे रेडिएट करेगा, लॉन्ग वेव के फॉर्म में. द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इज कनेक्टेड विथ द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड. कहने का मतलब ये है कि प्रकाश आ रहा है और पृथ्वी के पास जो एयर है ना, धरातल के समीप जो वायु है वो क्या होता है, गर्म होता है और धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट करता है ना. उसके संपर्क में, गर्म वायु के संपर्क में जो भी वायु आती है वो भी गर्म होता चला जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन, है ना. मैंने बोला था कंडक्शन समझाऊंगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन. कंडक्शन को एक और तरीके से समझ सकते हैं. कंडक्शन टेक्स प्लेस when two bodies of unequal temperature
are in contact with one another, है ना, one another, there is a flow of energy from warmer to the cooler body. The transfer of heat continue until the both body attain the same temperature or contact is broken, है ना. तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बोल रहे हैं ना. अब देखो कंडक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं. आप किचन में जब आप देखते होंगे, किचन में जब आप खाना बनाने जाते हैं, तो जब आप सब्जी बना रहे हैं ना, और जब लैडल यानी कि कलछुल को जब आपने रख दिया कढ़ाई में और बर्नर को ऑन कर दिया, तो क्या होता है, वो कढ़ाई तो गर्म होता ही है, और वो जो आपने लैडल रखा है, कलछुल रखा है, वो भी क्या होता है, जिससे आप चलाते हैं, वो भी गर्म हो जाता है. तो बेसिकली इट्स व्हाट, है ना, क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है. इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन. या फिर एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि एक आयरन का रड लें आप, और गैस के बर्नर पर एक पॉइंट गैस के बर्नर पर और दूसरा पॉइंट आप खुद पकड़ लें. आफ्टर सम टाइम आप ये पाएंगे कि जिधर आप पकड़े हुए हैं उधर भी क्या हो रहा है, हीट फ्लो कर रहा है, उधर भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है. तो बेसिकली इट्स अ कंडक्शन. ये एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने आपको बताया. नाउ conduction is important in heating the lower layer of the atmosphere. Always remember, conduction is important in heating the lower layer of atmosphere. ठीक है, lower layer of atmosphere को heat करने के लिए conduction वाला जो process है वो होता है. The air in contact with the earth rises virtually on heating in the form of current and further transmit the heat of the atmosphere. This process of vertical heating of the atmosphere is known as convection, है ना. कन्वेक्शन और कंडक्शन में ये अंतर हो गया कि ये एयर मास जो गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, वो क्या हो जाता है, एक करंट के रूप में हो जाता है ना. इट बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ करंट एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट इन द एटमोस्फेयर, है ना. कैसा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वर्टिकल, है ना. वर्टिकल डायरेक्शन में जब एयर मूव करना शुरू होता है ना, गर्म वायु वर्टिकल डायरेक्शन में जब ऊपर उठना शुरू हो जाती है और दूसरे वायु धाराओं को गर्म करना शुरू करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं ना. The convective transfer of energy is confined only to the troposphere. और ये जो प्रक्रिया है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है. Now, the transfer of heat through horizontal movement of air is called advection, है ना. अब यहाँ पर ट्रांसफर हीट का जो अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एडवेक्शन. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट of the air is relatively more important than the vertical movement in the middle latitude. Most of the diurnal is basically day and night. Most of the diurnal variation in daily weather caused by the advection alone. समझ रहे हैं बात. आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि डेली वेदर में जो चेंजेस होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या एडवेक्शन के द्वारा, तो आपका उत्तर होगा एडवेक्शन. बेसिकली इट्स द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना. और हीट कैसे ट्रांसफर होता है, मीडियम क्या होता है, विंड, है ना. विंड के द्वारा जब, है ना, एयर जब मोशन में आ जाए उसको विंड बोल रहे हैं, और विंड के द्वारा जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा हीट को, उसको क्या बोल रहे हैं, एडवेक्शन बोल रहे हैं. In tropical region, particularly in northern India, during summer season, local wind called Lu is outcome of the advection process. आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में, अभी 2 साल से ऐसा अनुभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन पहले जब आप देखते होंगे गर्मी के समय में लू चलता था, है ना, लू, गर्म वायु. तो वो किस तरीके का प्रोसेस है, वो एडवेक्शन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है. नाउ ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिलेटिंग regarding the solar radiation and interaction of solar radiation with atmosphere and heating and cooling of atmosphere, you can ask me question. If you guys have any doubt, you can ask me. This is all about the today's session. Guys, please ask your doubt.
If you are getting any problem to understand all those things, you can ask me. So for the time being, this is all about the today's session. Thank you. सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान। लाखों की संख्या में वैकेंसी। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PU बेकर इंस्टीट्यूट। स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PU बेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। Thank you, sir. सरकारी नौकरी पाना। ठीक है, तो मंडे को आइए आप लोग क्लासेस में हम लोग। ठीक है, ओके, आज यही रखते हैं हम लोग। Okay, thank